Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Majid wal Furqanil Hamid. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. La yu'akhidhu Allahu bil-laghwi fi aymanikum ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حلیم. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور دوستو، اسماء حسنہ کی یہ 26ویں نشست ہے جس میں انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی ایک صفت حلیم، صفت حلم پر غور کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات، ان پر غور کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہوتا ہے. یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والی 3 چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات جس پر غور کرنے کو ممنوع قرار دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی صفات، ان پر غور کرنے سے معرفت خداوندی پیدا ہوتی ہے. اور تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کے افعال، اس کے فنکشنز آپ چاہے تو کہہ سکتے ہیں. اس پر غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت نکھر کر سامنے آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات بہت ساری ہیں، لیکن ان کو اسلام نے 99 نمبر میں، 99 کے عدد میں منحصر کیا. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی، ان للہ 99 اسما، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. فمن احصاها فقد دخل الجنہ، جو ان کو سمجھ لے گا، پالے گا، ان کا مفہوم اخذ کر لے گا، انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہو کر رہے گا، کیونکہ اس کا ایمان بہت پختہ ہو جاتا ہے. اسماء حسنہ کے ذریعے سے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، ان کے ذریعے سے، ان کو سمجھنے سے ایمان بہت مضبوط ہو جاتا ہے. اور ایمان مضبوط ہونے کی وجہ سے بندہ پھر در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھاتا، غلط راہوں پر نہیں چلتا. وہ اپنے رب کو پکارتا ہے رزق کے لیے، اولاد کے لیے، شفا کے لیے. وہ اپنے رب کو پکارتا ہے بخشش کے لیے، عنایت کے لیے، علم کے لیے. وہ اپنے رب کو پکارتا ہے تجارت میں کامیابی کے لیے، معاشی مسائل کے حل کے لیے. ہر چیز میں وہ اپنے مولا کا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب ہو جاتا ہے. اور یہ وہ اسماء حسنہ ہیں، یہ وہ صفات ہے جو بندہ مومن کے لیے دعاؤں کا سرمایہ بن جاتی ہیں. یہ وہ صفات ہے جس کے ذریعے سے بندہ مومن دعائیں مانگتا ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. دیکھو اس کے اچھے نام ہیں، اس کی پیاری پیاری صفتیں ہیں، ان کے ذریعے سے تم اس کو پکارو. قرآن پاک میں جو دعائیں ہیں، اور پھر اس میں جو نبیوں کی دعائیں ہیں، حضرت ابراہیم کی، حضرت موسیٰ کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان سب میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے لے کر اور اس کی دہائی دے دے کر دعائیں کی گئی ہے. کہیں کہا جا رہا ہے البر الرحیم، کہیں الرحمن الرحیم، کہیں ارحم الراحمین، کہیں احکم الحاکمین، کہیں خیر الرازقین. یہ ساری وہ آیتیں ہیں جو بتلاتی ہیں کہ دعاؤں کا طریقہ اور قرینہ ہم کو سکھایا گیا، اللہ کے ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارو. تیسری چیز یہ بھی ہے کہ یہ اسماء حسنہ جہاں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی سیڑھیاں ہیں، زینہ ہے، اور جہاں یہ دعاؤں کا قرینہ ہے، دعاؤں کا طریقہ ہے، وہیں یہ اسماء حسنہ قرآن مجید کی فہم کی راہیں بھی کھولتی ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں، اور شاید میں جب کہتا ہوں تو مبالغہ نہیں کرتا ہوں، کہ فہم قرآن کی یہ کنجیاں ہیں، کلید، کیز، جن سے آپ لاک کھولتے ہیں اور لائبریری میں داخل ہوتے ہیں. ایسے ہی آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اکثر و بیشتر آیات، پوری تو میں نہیں کہوں گا لیکن اکثر آیتوں کا
इख्तिताम अस्माए हुस्ना पे फरमाया। और एक इल्म है, बहुत बड़ा इल्म है, जो बड़े उलमा अपनाते हैं, आम लोगों के, हम जैसे लोगों के तो बस में भी नहीं है, उसको कहते हैं इल्मुल मुनासबा। मुफस्सिरीन के पास इससे मुराद ये होता है कि आयत में जो बात अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई वो और इख्तिताम पे जो अस्माए हुस्ना में से सिफात आई हैं, दोनों में क्या मुनासिबत है। अजीब व गरीब मुनासिबतें होती हैं, और उसके सिलसिले में मैंने चंद वाकयात भी आपकी खिदमत में इससे पहले रखे थे। चौथी चीज बहुत ही अहम, इन अस्माए हुस्ना का जो फायदा होता है वो ये, हमारी अपनी अमली जिंदगी बहुत सुधरती है, बड़ी तब्दीली होती है इंशाअल्लाह। आज भी जिस सिफत पे हम गुफ्तगू करेंगे तो उसका जो प्रैक्टिकल निचोड़ है, हमको और आपको जो अमली तौर पर चीज हासिल होती है, उसकी जानिब पे मैं इशारा करूंगा कि वो अरहमुर राहिमीन है। तो फरमाया कि अर्श वाला जहां रहमान है तो ये पसंद करता है कि फर्श वालों के अंदर भी रहमतें हों, मेहरबानियां हों, नरमी हो। अर्श वाला अल्लाह ताला जब सखी दाता है, रज़ाक है, तो ये पसंद फरमाया कि युतिमुन ताम अला हुब्बिही, तुम भी खाना खिलाने वाले बनो, अल्लाह की रिज़्क़ को तकसीम करने वाले बनो। ये फरमाया कि जब अल्लाह ताला अलीम है, उसका इल्म जाती है, तो तुम भी इल्म सीखने की कोशिश करो, इल्म की सिफत अपने अंदर लाओ। मैं अर्ज करता हूं कि लाजमी बात है, अल्लाह ताला की जो सिफात हैं वो उसकी अपनी जाती है, उसकी हयात जाती है, उसका इल्म जाती है, उसकी कुदरत जाती है। और हमारी जो कुदरत है, हमारा जो इल्म है, और हमारी जो सारी सिफतें हैं देखने की, बोलने की, वह सब की सब याद रखिए वो अताई हैं, अता होती है, अल्लाह ताला की जानिब से मिलती हैं, टेम्पररी होती है, थोड़ी सी होती है, लेकिन मिलती उसी की जानिब से। और जब हम अपने अंदर अस्माए हुस्ना को सीखने के बाद उनका एक अक्स लेने की कोशिश करते हैं तो हमारी मानवियत बहुत बढ़ जाती है, हमारी अहमियत बहुत बढ़ जाती है। उसकी एक दलील इंशाअल्लाह गुफ्तगू के आखिर में मैं आपकी खिदमत पे रखूंगा। जैसे कि मैंने अर्ज किया, हलीम की सिफत कुरान मजीद में अगरचे के 15 बार आई है तो आप हलीम अगर गिनेंगे तो 15 बार, लेकिन उसमें 11 मर्तबा अल्लाह ताला के साथ मखसूस है और 4 मर्तबा बंदों के साथ है। जैसे अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सिलसिले में हलीम फरमाया, जैसे अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के सिलसिले में फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीमिन इरशाद फरमाया। तो बंदों के लिए अल्लाह ताला ने 4 जगह इस सिफत का इस्तेमाल किया, और खुद अल्लाह ताला ने अपनी जात के लिए, अपने लिए 11 मर्तबा इस लफ्ज को इस्तेमाल किया। जैसे कि मैंने अभी एक आयत तिलावत की कि ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फी ऐमानिकुम वलाकिन युआखिजुकुम बिमा कसबत ऐमानुकुम वल्लाहु गफूरुन हलीम। आप देखेंगे कि कुरान मजीद में 5 मकामात हैं जहां पे गफूर के साथ हलीम का लफ्ज आया है। एक मकाम है जहां गनीयुन हलीम आया है, एक मकाम है जहां शुकूरुन हलीम आया है, 2 मकाम है जहां इन्नल्लाह काना हलीमन अलीमा का लफ्ज आया, अलीम के साथ भी हलीम का लफ्ज आया, गफूर के साथ है, इल्म के साथ है, गनी के साथ है, शुक्र के साथ है, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल गफूर के साथ हुआ। 5 मकामात पर इन्नल्लाह काना गफूरन हलीमा आया है, इन्नल्लाह गफूरुन हलीमुन आया है। ये मुख्तलिफ मकामात पर यह लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और इस हलीम को समझने के लिए लफ्ज हिल्म समझना होगा। हिल्म हा लाम मीम ये रूट वर्ड है। अगर आप किसी अरबिक डिक्शनरी में जाएंगे तो इसको तलाश करेंगे, हलीम को तलाश करना हो तो आपको करना पड़ेगा हा लाम मीम। क्योंकि मैं ये बार बार कह चुका हूं और इतनी बार कह चुका हूं कि मैं समझता हूं अब ज्यादा वजाहत की जरूरत नहीं है कि अरबिक पूरी की पूरी अरबी जबान का जो निजाम है, जो उसका दारोमदार है, वो रूट वर्ड्स पर है। रूट हर एक की जड़ है, वो हमारी उर्दू की तरह या हमारी अंग्रेजी की तरह नहीं है, बल्कि उसमें एक जड़ होती है और उस जड़ से अब शाखें निकलती हैं। अब मसलन
गैन फारा गफरा, अभी इसी से गाफिर बनेगा, इसी से फिर गफार बनेगा, इसी से गफूर बनेगा, इसी से मगफूर बनेगा, इसी से इस्तिगफार बनेगा, इसी से मुस्तगफिर बनेगा, बढ़ते चले जाएंगे, अल्फाज बनते चले जाएंगे। और गिनने वालों ने गिन कर शुमार कर कर बताया, कभी कभी एक जड़ से 1200 लफ्ज बनते हैं और इसकी कोई नजीर दूसरी जबान में नहीं है। इंग्लिश में भी बनते हैं, लेकिन अब एग्जाम है और ये एग्जामिनेशन खत्म, 3 पे छुट्टी होगी, इससे ज्यादा नहीं बनते, या एग्जामिनर और 1-2 बनेंगे ऐसे ही। लेकिन अरबी में जो अल्फाज बनते चले जाते हैं, बनते चले जाते हैं, बनते चले जाते हैं। अल्लाह ताला ने तो कुरान मजीद में इरशाद फरमाया था, फारसला अलैहिम तैरन अबाबिल, तैरन, बस इतना ही आया। अब उसी से आप देखेंगे कि आज ताइरा है प्लेन, आज मतार है एयरपोर्ट, आज तैरान है एयरलाइंस, उसी से तैयार है पायलट, और इसी से ये है, उसी से वो है, सैकड़ों अल्फाज है, बनते चले जा रहे हैं, तरक्की करते चले जा रहे हैं। ये एक अजीब और गरीब हुस्न है, और उसी हुस्न का एक नमूना है हिल्म, हा लाम मीम। इसके माने क्या होते हैं? अल हिल्म जब आता है तो इसका हम उर्दू में तर्जुमा बुर्दबारी, संजीदगी, वकार, इन अल्फाज से करते हैं, लेकिन वो मफहूम अदा नहीं होता जो अरबीदा हजरात डिक्शनरियों में इसकी वजाहत करते हैं। जो अरबी के सोर्स हैं, अहम तरीन रेफरेंस बुक्स है, डिक्शनरीज है, उसमें जो वजाहत आती है उसमें ये कि गौर से सुनने की बात है, अल हिल्म मुआलजतिल उमूर बिसब्रिन व इल्मिन व हिकमतिन। उसकी तशरीह करते हुए कहा, मुआलजतिल उमूर, किसी भी मसले से निमटना, बिसब्रिन, पूरे सब्र के साथ, इल्मिन, मालूमात के साथ, और हिकमतिन, दानाई, शऊर, दानिशमंदी के साथ, कि कोई भी मामला आपके सामने आ जाए, अब उस मामले से जो निमटा जाता है वो आम तौर पर फौरन ही उसका रिएक्शन होना जरूरी हम समझते हैं। ये हिल्म के बिल्कुल खिलाफ है। हिल्म में सब्र, देखा जाएगा उसके असरात को, गौर फिक्र किया जाएगा, और फिर उसके साथ साथ मालूमात होनी चाहिए। उठा के जज्बे में हम जवाब दे देते हैं और उसके बाद पता चलता है कि मालूमात थी ही नहीं, नील थी, गलत जवाब दे दिया। ये हिल्म के खिलाफ है। और तीसरी बात, मालूमात भी है, सब्र भी है, लेकिन वक्त का तकाजा है कि इसको टाल दिया जाए तो टाल दिया जाए, और वक्त का तकाजा है कि इसका ये जवाब ना दिया जाए, कुछ और जवाब दिया जाए, लिहाजा कुछ और जवाब दिया जाए। जिसकी मैं मिसाल देता हूं, फिर उसके बाद हलीम की सिफत की हम थोड़ी सी तशरीह करेंगे। मैं हिल्म की मिसाल देता हूं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार में ले जाए गए। बहुत खतरनाक किस्म का बादशाह था, बड़े बादशाहों में से था। पूरा इराक, क्या उस वक्त की जो सुपर पावर थी कलदान की, वो पूरी की पूरी उसकी कंट्रोल में थी। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से सही सालम बरामद हो गए तो बहुत शोर हुआ। एक नौजवान, उसको आग में फेंका गया था, लेकिन आग का आलम यह है कि बाल भी का नहीं कर सकी, आपको जर्रा बराबर नहीं जलाई, तो बहुत शोर हुआ। एक तो मूर्तियां तोड़ दी थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, और फिर आग से जिंदा निकल आए। लिहाजा बादशाह सलामत को खबर पहुंचाई गई, और वो अपने आप को समझता था कि सारे सितारों का सरदार सूरज, उस सूरज का मैं धरती पे नुमाइंदा, सबसे बड़ा मैं बादशाह, मेरे सिवा किसी को सजदा न करना, और मेरे सिवा किसी का ऑर्डिनेंस नहीं चलेगा। मगरूर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहुंचाए गए तो कहा कि किस दीन की बात करते हो तुम, किस खुदा की परस्तिश करते हो, मुझसे हटके किसकी इबादत करते हो? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, उस रब की करता हूं जो जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है। तो उसने जवाब में क्या किया वो आप जानते हैं, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बयान किया कि उसने कहा कि मैं भी आना हुई वो उम्मीद, मैं भी जिंदा रख सकता हूँ, मार सकता हूँ। एक को जिंदा छोड़ दिया, एक बेचारे को चलते हुए को मार डाला। बेवकूफी को उसने जवाब समझा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अगर हिल्म ना होता तो उस पर क्रिटिसाइज करते और ये कहते, अरे जालिम, नादान, मासूम को तूने मार डाला और मुजरिम को तूने छोड़ डाला, तो बेवकूफ है, ये थोड़ी है मौत व हयात देना।
मौत और हयात तो असल अल्लाह के हाथ में है, तो जरिया बना, ये सब नहीं कहा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। यह देखिए हिकमत, दानाई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़ी संजीदगी से, बगैर किसी इश्तियाल के, जज्बाती हुए बगैर इत्मीनान के साथ कहते हैं ठीक है तुम इसी को सही समझते तो समझ लो, क्योंकि कभी कभी वीआईपीस का भी अहमकपन होता है। लिहाजा कहा कि इस अहमकपन को तुम समझते हो, जवाब तो समझ लो, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, फ़इन्न अल्लाह याती बिशम्सी मिनल मशरिक़ फाती बिहा मिनल मग़रिब। अल्लाह ताला मेरा परवरदिगार एक काम और करता है, रोजाना ईस्ट से सूरज निकलता है, मशरिक से, मगरिब में डूबता है। इसके उल्टा करो, तो इसका उल्टा करो, फाती बिहा मिनल मग़रिब, जरा आज वेस्ट से, मगरिब से तुम सूरज निकाल के बता दो तो मैं मानूं कि तुम्हारे अंदर भी कुछ कुदरत है। फबुहितल्लज़ी कफर, उसके मुंह पे ताला लग गया, बोलती बंद हो गई और उसको जवाब नहीं सुझाई दिया। ये हिकमत होती, दानाई होती, टॉपिक चेंज करना, बहस में न उलझना, उसी चीज को बिला वजह बिगाड़ कर पेश करने की कोशिश न करना, लाजवाब करना। ये है वो हिकमत जिसके बारे में कहा गया कि हिल्म दरअसल मुआलजतुल उमूरी, चीजों से निमटना। किस तरह से? बिसब्रिन, साबित कदमी, संजीदगी, टालते हुए, देर करते हुए, ठंडा होने के लिए केस को छोड़ देना चाहिए। और इल्मिन, नादानी के साथ नहीं, शऊर के साथ केस पूरा पढ़िए, मालूमात पूरी हासिल कीजिए और उसके अंदरून तक जो कजिया है, इशू है, उसकी गहराई तह तक जाने की कोशिश कीजिए और फिर फैसला हिकमत के साथ कीजिए, दानाई के साथ कीजिए, होशियारी के साथ कीजिए। असल तो हिकमत ये होनी चाहिए, याद रखिए, सांप मर जाए लाठी न टूटे, शोर मचाने से कोई हासिल नहीं होता। लाठी पीट पीट के लाठी तोड़ दिया आपने और सांप भी जिंदा रह गया, ये तो मुसीबत हो जाती है। यही वो दानाई, यही वो हिल्म और यही उस सिफत की कमी थी हम मुसलमानों के अंदर, जिसकी वजह से बाबरी मस्जिद शहीद हुई। हालात ऐसे थे, अगर हम दानाई से मामले को टालते हुए और पूरे इल्म के साथ, गहराई के साथ अगर इस केस से निमटते तो शायद ये नौबत ना आती। ऐसे मरहले आए थे जहाँ पे के गैर मुस्लिम भी घुटने टेकने के लिए तैयार थे, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन, हमारे ये छोटे छोटे महलों के पहलवान, वो उनका आलम ये था, देख लेंगे अल्लाह के घर में कौन घुसता है, कैसा तोड़ता है, देख लेंगे। तो देखो, अब तक देख रहे हो क्या कर लिया तुमने। लिहाजा बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई गई, उसमें इख्तिलाफात, उसको तोड़ दिया, दो टुकड़े कर दिया। उसके बाद हमारे पास तो इख्तिलाफ रहा, उधर इत्तेहाद रहा, वो अपना काम कर गए। ये सिफत हमने अपने अंदर से खत्म कर ली कि हिल्म होना चाहिए, जिसका मैं तर्जुमा नहीं कर पा रहा हूँ। बुर्दबारी, संजीदगी, आला समझ, इशू को टालना, सही मौके पे फैसला करना, ये है हिल्म, जो अल्लाह ताला की सिफत है। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वो हलीम है, वो हलीम है। और मैंने अर्ज किया था, गफूर के साथ हलीम बहुत जोड़ा गया है। और ये हलीम के लफ्ज को हैदराबादियों ने और बदनाम कर दिया, कहां से लिया है पता नहीं, वरना तो ये डिश जितने एनआरआई जानते हैं अरबों में हरीस के नाम से है। ये हम लोग कहां से लिया है पता नहीं। मैं जवाज, अदम जवाज और फतवे की जबान में बात नहीं कर रहा हूँ, जौक की बात कर रहा हूँ कि जब उस डिश का मारूफ नाम हदीस के लिटरेचर में और अरबों के पास और हमारी अपनी तारीख में हरीस है, तो उसको क्यों हलीम के नाम से तब्दील किए और क्या जरूरत पेश आई थी और किसने तब्दील किया चाबुकदस्ती के साथ, ये समझ में नहीं आता। लिहाजा मैं हमेशा गुजारिश करता हूँ कि उसको आप हरीस कहिए। हलीम अल्लाह की सिफत है, अल्लाह की सिफत है। और ये सिफत, इसका नमूना अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है। इसका नमूना ये है, फरमाया कि अगर अल्लाह ताला हलीम ना होता, इरशाद फरमाया, अगर हिल्म उसकी सिफत ना होती तो फिर इरशाद फरमाया जब इंसान गुनाह करता रहता तो रेड हैंडेड हलाक करता अल्लाह ताला, चोरी करते हुए उसको पत्थर का बना देता, जिना करते हुए उसको नंगा उठा लेता, तो फिर इंसान कुछ ना करता। लेकिन इरशाद फरमाया वो हलीम है, गफूर है, उसके पास बख्शने की अदा है, माफ करने की अदा है, और उसके पास केस टालना, सबर, मौका देना, मुअख्खर करना, ये उसकी अदा है। इसीलिए लोगों के गुनाहों को वो मुअख्खर करता है। अजीब व गरीब है अल्लाह ताला की सिफत हलीम।
देखिए, अगर कोई मुजरिम जुर्म कर रहा है और उसके जुर्म को टाल दिया जाए तो दो में से एक चीज होती है, या तो वो जुर्म पर जरी हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं और करो, या फिर ये कि उसकी सजा बहुत बढ़ती जा रही है तो उसके हक में जुल्म हो गया, सजा बहुत बढ़ती चली जा रही है, लिहाजा मुजरिम को जब भी सजा दे देना अच्छा है। तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं, अल्लाह ताला हलीम है, तो वो क्या करेगा, वो ट्रीट करेगा इस चीज को हिकमत के साथ, दानाई के साथ। फरमाया उलमा ने, जो दानाई है, हिकमत है, अल्लाह के इल्म और उसकी कुदरत के साथ साथ टालने में, सजा को टालने में जो दानाई और हिकमत है, वो ये कि अल्लाह ताला फिर छोटी छोटी सजाओं से बंदे को अलर्ट करता रहता है, तौबा कर लो, तौबा कर लो। कुरान पाक में दो मकाम पर अल्लाह ताला ने क्लियर इरशाद फरमाया कि हम छोटी छोटी सजाओं में तुमको गिरफ्तार करते रहते हैं, दून अल अज़ाबिल अकबर, बड़ी सजा को हमने टाल कर रखा है। ये इसलिए है मुतनब्बे हो जाओ, तौबा कर लो, अल्लाह की रहमतों के तुम मुस्तहिक हो जाओ, इसीलिए अल्लाह ताला छोटी छोटी सजाएं भी दे रहा है दुनिया में। कभी बीमार कर देता है, कभी एक छोटा एक्सीडेंट कर देता है, संभल जाए इंसान, मेरी तरफ लौट कर आ जाए, अपनी मजबूरी को समझ ले और अपनी कमजोरी को समझ ले कि कितना नाकिस है, कमजोर है, वो कुछ नहीं कर सकता अपने सिलसिले में, ऐसा बीमार कर देगा, मजबूर हो जाता है इंसान और बीमारी के अलालत के आखिरी मरहले में आंखें बंद करके सिर्फ मौला 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 पुकारता रहता है, कोई और सहारा नजर नहीं आता। मजबूरी का एहसास दिला दिया उसने, ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है कि देखने वाला ये कहे कि कैसे ये बच गया, अल्लाह ताला बचा लेता है। और ऐसी बहुत सारी आजमाइशों से अल्लाह ताला दो चार करता है, जिसके बारे में खुद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये हमारी छोटी छोटी पकड़ है, दून अज़ाबिल अकबर। बड़ी पकड़ जब आ जाएगी फिर उसके बाद से कोई तुम्हारी माफी नहीं होगी, तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी, फिर तो सजा की शिकार हो जाओगे। ये है अल्लाह की हलीम होने की सिफत, कि उसका मामला ये है कि अगर वो चाहता तो इरशाद फरमाया गुनाह करते हुए तुमको तबाह कर देता, और ये इरशाद फरमाया कभी कभी कलेक्टिवली पूरे इंसान ऐसे जुर्म करते रहते हैं, फरमाया अगर हम अजाब नाजिल कर दें तो इंसान चौपाए भी हलाक हो जाए, कीड़े मकोड़े भी हलाक हो जाए, ऐसी हम तबाही व बर्बादी ले आए। लेकिन इरशाद फरमा वाला की वखिरुहा, लेकिन अल्लाह ताला इनको टाल देता है, सजा को टाल देता है, और फिर उसका हिल्म होता है, हलीम होने की सिफत उसकी, ये फिर जरूरत महसूस करती है, तकाजा करती है कि दाइयों को भेजता है, समझाने वालों को भेजता है, समझाने वाले समझाते हैं, गुनाहों से रोकने की कोशिश करते हैं, नेकियों का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। ये सारी मोहलतों को इंसान नजरअंदाज करते 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 जब अपने इंतहा को पहुंच जाता है और मौत से दो चार हो जाता है, जुर्म पर जब मरता है, तब अल्लाह ताला फिर पकड़ करेगा, फिर आखिरत में वो माफ नहीं करेगा। ये उसकी अदालत का, आदल का तकाजा है कि अब जुर्म पर मर गया तो सजा होनी चाहिए, लेकिन तौबा कर गया तो आप जानते हैं 99 कत्ल बल्कि उसको 100 में वो तब्दील कर दिया, तब भी तौबा किया तो अल्लाह ताला ने उसकी तौबा कबूल की। कितनी मशहूर हदीस है। लिहाजा गफूरुन हलीमुन, इसलिए बार बार अल्लाह ताला ने तकरार फरमाई कि ये उसका बख्शना अजीब गरीब हिकमत के साथ है, दानाई के साथ है और करम फरमाई के साथ है। इसके साथ साथ गनीयुन हलीम भी इरशाद फरमाया कि कभी कभी हम जो सबर करते हैं मजबूरी की वजह से, अब सबर कर रहे हैं ना, आजकल इंडिया में जो बिल पास हो रहा है सबर के सिवा क्या कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए इसको आप हलीम नहीं कहेंगे ना, ये तो मजबूरी का सबर है, इसके सिवा हम क्या कर सकते हैं। तो फरमाया नहीं, अल्लाह के पास मजबूरी नहीं, गनीयुन, फरमाया सारे इंसानों से, पूरी मखलूक से बेनियाज, सबको तबाह कर सकता है, फिर भी वो हलीम है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि पहलवान वो नहीं है जो किसी को पछाड़ दे उसके सीने पे बैठ जाएगा, ये तो मामूली चीज है, कोई भी कर लेगा। फरमाया पहलवान वो होता है जिसके अंदर इंतकाम की पूरी ताकत है, उसके बावजूद वो इंतकाम न ले। ये अल्लाह ताला की सिफत है, इंतकाम लेने की पूरी ताकत। वो अपने आजाब से तहस नहस कर सकता है लेकिन फिर भी माफ फरमाता है। ये गनीयुन, मजबूरी की वजह से माफ फरमाना नहीं है, बल्कि
कुदरत के साथ माफ फरमाना, मौखर करना, डिले करना। और फिर अल्लाह ताला ने अलीमुन हलीमुन ये दोनों लफ्ज भी दो जगह इख्तियार फरमाए। और अलीमन हलीमा बोलने की वजह यह है कि मैंने तशरीह कर दी ना शुरू में ही कि पूरी मालूमात के साथ केस को समझते हुए इशू की तह में जाना, ये सिफत तो बस अल्लाह ही की है। लिहाजा अल्लाह ताला का इल्म मुहीत है और अपने पूरे इल्म के साथ वो मौखर करता है, अपने पूरे इल्म के साथ वो इंसान को माफी देता है। ये है अलीम। और शकूरुन हलीमुन जो इरशाद फरमाया, तो शकूर का तर्जुमा यहाँ पे आप इस तरह कीजिए कि कबूल कर लेने वाला। जब अल्लाह के साथ ये शुक्र का शकूर का लफ्ज आता है तो इसके माने ये होते हैं कि उसने हमारी मेहनतों को, इबादतों को, दुआओं को, रियाजतों को कबूल कर लिया, ये मफहूम होता है, यही शुक्र है उसका। लिहाजा इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला का आलम यह है कि बड़ी नाकिस इबादतें होती है, मिलावट वाली। आपके घर कोई दूध वाला आ रहा हो और आपका उससे एग्रीमेंट हो चुका हो कि तुम पानी बिल्कुल न मिलाना, रेट मुंह मांगा ले लो, आपने उसकी फरमाइश के मुताबिक कीमत तय कर दी और उसके बाद फिर आप उसकी मिलावट को पकड़ लें कि ये आते हुए 200 मिलीलीटर पानी इसमें मिला दिया, तो आप क्या करेंगे? आप फौरन कहेंगे कल से छुट्टी तुम्हारी, हम तुमसे दूध नहीं लेंगे। तो हम जो इबादत करते हैं, बार बार अल्लाह ताला ने कहा कि देखो अना अगना शुरका अन शिरकिहिम, मेरे साथ किसी को शरीक ना करना, मेरी इबादतों में किसी चीज को शरीक ना करना। फिर भी बंदों का आलम यह है कि नमाज में किसी को शरीक कर रहे हैं, दुआओं में किसी को शरीक, दिखावा भी है, रियाकारी भी है और नक्स भी है, कमी भी है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला का आलम यह शकूरुन हलीमुन, वो बहुत मौखर करते हुए, माफ फरमाते हुए, डिले करते हुए सजा को वो कबूल कर लेता है। ठीक है, नमाजियों के रजिस्टर में इसका नाम लिख दो, ठीक है, नेकी करने वालों के रजिस्टर में इसका नाम लिख दो। यह है अल्लाह ताला शकूरुन हलीमुन। ये वो सिफत है जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ किया, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम में ये सिफत बहुत नुमाया थी। अव्वाहुन हलीमुन इरशाद फरमाया। क्यों? देखिए, अंबिया अलैहिस्सलाम सारी अच्छी सिफतों के हामिल हुआ करते हैं, लेकिन एक सिफत उन पर गालिब रहा करती थी। मसलन अंबिया अलैहिस्सलाम में हमदर्दी होगी, अंबिया अलैहिस्सलाम में हया होगी, अंबिया अलैहिस्सलाम में हिल्म बुर्दबारी होगी, अंबिया अलैहिस्सलाम में दीन के मामले में जलाल होगा। ये सारी जितनी अच्छी सिफात है वो अंबिया अलैहिस्सलाम में पाई जाती है। लेकिन बाज सिफतों में बाज नबियों का आलम ये होता है, बहुत आगे होते हैं उसमें। एक अच्छा स्टूडेंट हो तो सारे सब्जेक्ट में अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी एक सब्जेक्ट में बहुत नुमाया होता है, सब में 90 नंबर लेता है, लेकिन मैथमेटिक्स में तो 99। और एक स्टूडेंट का आलम ये सब में अच्छे नंबर लेता है, फिजिक्स में तो उसका इतना दिल लगता है कि 100 से नीचे नहीं उतरना चाहता। तो ऐसे ही अंबिया अलैहिस्सलाम में आप देखेंगे कि एक एक सिफत नुमाया होती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में हमदर्दी बहुत नुमाया थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में आप देखेंगे कि अल्लाह के दीन के मामले में मजाक तो जलाल बहुत नुमाया था, उसको रोक नहीं पाते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी में आप देखेंगे बड़ी हिकमत थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मामले में आप देखेंगे बड़ी अदालत थी और फरमा रवाई थी, हुकूमत थी। तो ऐसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम में सारी सिफतें थी, लेकिन सिफत इल्म बहुत ज्यादा नुमाया थी, बहुत ही बुर्दबार, और इतनी बुर्दबारी और ऐसा अपने आप पर कंट्रोल रखना, तैश में ना आना, जल्दी रिएक्शन न देना कि वालिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को घर से धक्के देकर निकाल रहे हैं, वहजुरनी मलिया कहा, निकल जाओ यहां से, नहीं रह सकते, रहना है बुतों की इबादत करो, नहीं चलते बनो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं कि मुझे अल्लाह ने रसूल और नबी बनाया, अभी अब्बा मेरी बात सुन लीजिए। कहा कि देखिए, अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो फिर आप शैतान के पैरोकार बन जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। सारी हमदर्दी की बातें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं।
اور بتوں کا بیکار ہونا ثابت کر دیا توڑ پھوڑ کر سب کچھ کرنے کے بعد, اور آگ سے تر و تازہ نکل آئے. اس سے بڑھ کے کیا معجزہ چاہیے بولیے آپ. لیکن والد ہے کہ بات ہی نہیں مان رہے, وہجرنی ملیا, چلتے بنو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام علیکہ, ابا آپ پہ سلامتی ہو. وسوف استغفر لک, اور میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا استغفار کروں گا. یہ نہیں کہا منہ نہیں دیکھوں گا آپ کا, یہ نہیں کہا, حالانکہ حق تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام حق پر ہے نا, سچائی پر ہے, رسالت پہ ہے, نبوت پر ہے. اور اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے کہ مجھے نکال دو تو تمہارا گھر اجڑ جائے گا, ابا تم سمجھ نہیں رہے ہو, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات غلط ہوتی. بولیے آپ نہیں, حق بجا نہیں ہوتے. لیکن کہا کیا؟ سوف استغفر لک ربی, اللہ سے ہمیشہ آپ کے لیے دعائیں مغفرت کروں گا. بغیر غصے کے, خیش میں آئے, خاموشی کے ساتھ اپنی اہلیہ کو لے کر چل پڑے اور ہمیشہ اپنے والد کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے, یہاں تک کہ والد کی موت آ گئی اور اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ اب تم دعا نہ کرو. اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بری ہو گئے اور روک دی دعا کرنا. یہ حلم, اس حلم کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار پیرانہ سالی ہے, وہ آپا ہے, حبلی من لدنک, اللہ اپنی جانب سے اولاد عنایت فرمائیے جو میرے مشن کو لے کر چلے, میری دعوت کو لے کر چلے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فبشرناہ بغلام حلیم, تو ہم نے کہا کہ اے ابراہیم جو آپ کی حلم کی صفت ہے نا, اسی صفت کے ساتھ ہم آپ کو بیٹا عنایت کریں گے. حضرت اسماعیل علیہ السلام تولد ہوئے. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حلم دیکھیے, آپ کا تحمل, آپ کا صبر, آپ کی سمجھداری اور آپ کا معاملات کی تہ تک جانا, یہ اس کا اعلیٰ نمونہ کہ ایک 7-8 سال کا بچہ ہے اور اس سے اس کے والد کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ ذبح کرتا ہوں, تو کیا میں تم کو ذبح کر دوں؟ تو پھر لڑکے کا جواب, جس کو علامہ اقبال نے کہا نا, کس اسکول میں تعلیم ہوئی تھی, کس نے تربیت کر دی تھی, کیسے جوہر یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر پیدا ہو گئے تھے کہ کہا کہ یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, ابا آپ کو جو حکم ہے وہ آپ کریے, میں صبر کروں گا, میں تحمل کروں گا, برداشت کروں گا. ورنہ کوئی لڑکا, آج کل کا تو عالم یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں سے یہ مطالبہ کریں کہ تکیا وہاں سے لا کے دے دو تو وہ کہیں گے آپ دیکھ نہیں رہے میں ہوم ورک کر رہا ہوں, ترکی بترکی جواب دیتے ہیں. لیکن وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب دیکھیے, ذبح کر دیجئے اللہ کی راہ میں, آپ کو جو حکم ہو رہا. یہ حلم اللہ کی جانب سے ملا ہوا تھا. لیکن ابھی آگے میں آ رہا ہوں, یہاں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملا ہوا تھا. آگے دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جامع الصفات ہے, سب میں 100% لانے والا اسٹوڈنٹ بھی ہوتا ہے نا, تو آپ کی پوری صفتیں جتنی ہے کامل ہے, کوئی ایک صفت کا غلبہ دوسری صفت کم ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں جو چیزیں آئی ہیں اس سے صاف پتہ چلتا ہے آپ ساری صفات میں کامل تھے. لہذا آپ کا حلم بھی, بردباری بھی, یہ بھی کامل تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے دن کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول, یہ صاحب جو ہے نا یہ بہت بدتمیزی کی تقریریں کرتے رہے اسلام کے خلاف, اور مقرر بڑا اچھا ہے. اور اس زمانے میں یاد رکھیے مقررین کی بڑی اہمیت ہوتی تھی. خطیب جو ہوتا تھا, آج آپ کا IAS IPS آفیسر کچھ نہیں اس کے سامنے, اتنی اہمیت اس کو دیتے تھے. وہی سفیر بنتا تھا, دوسرے ملکوں کو جاتا تھا, تو خطیب کی بڑی اہمیت ہوتی تھی. اور خطیب کے معنی وہ نہیں جو امام صاحب تنخواہ لے کے خطبہ دیتے ہو, وہ نمائندگی کرتا تھا قبیلے کی, قوم کی, خطابت ہوتی تھی عظیم الشان. لہذا یہ جو خطیب ہے, سہیل ابن عمرین کے سلسلے میں کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یہ بہت بولتا ہے اسلام کے خلاف, آج مکہ فتح ہو گیا اور آپ معاف فرما رہے ہیں, کسی کو قتل نہیں کر رہے ہیں, اس کو بھی آپ قتل نہیں کرنا چاہتے. اتنا کیجئے اللہ کے رسول, اس کے سامنے کے دانت توڑ دیجئے, اس کے سامنے کے دانت توڑ دیجئے تاکہ اس کی فصاحت ختم ہو جائے, خطابت اس کی باقی نہ رہ جائے. اور عرب یاد رکھیے, اب وہاں مخارج کے ساتھ بات کرتے ہیں, ہماری اردو کی طرح نہیں ہے.
हम उर्दू में तो आयन भी हमजा भी सब एक साथ निकालते हैं, जा भी और बात भी, और बहुत सारे लोग तो शीन भी सीन भी एक साथ आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम बोलते हैं, और हमारे हैदराबादी तो काफ भी और खमर भाई कर देते हैं, खमर भाई को। ये सारे मसाइल है, हम हिंदुस्तानियों के साथ है उर्दू का, अरब नहीं, अरब पसंद नहीं करता है, वो आयन क्लियर निकालेगा। मुझे तो इस मखारिज का लुत्फ उस वक्त आया जब मैं मक्के मुकर्रमा में अपने होटल की तरफ जा रहा था, छोटे छोटे बच्चे ऐसे इस उम्र के खेल रहे थे, तो उसमें एक लड़की का नाम अफरा था, मैं हिंदुस्तानी तलफ़्फ़ुज़ के साथ अभी कह रहा हूँ, एक लड़की का नाम अफरा, और दूसरी लड़की उसको जो पुकार रही थी, कैसा पुकार रही थी, अफरा या अफरा, बोला ये है तलफ़्फ़ुज़ इनका, ये मखारिज है, बच्चे हैं लेकिन क्लियर मखारिज, जितने एनआरआई हो जानते होंगे। तो मखारिज वो बहुत साफ सुथरे पसंद करते हैं, दांत टूट गए तो मखारिज पूरे नहीं निकल सकते है ना, बहुत से अल्फाज सामने के दांतों पर डिपेंड करते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन आप नहीं कर सकेंगे दांत टूट जाए तो, लिहाजा उस जमाने में चौकड़े का मसला भी नहीं रहा होगा कि किराए का लगा ले वो बेचारा। तो हजरत उमर ने मशवरा दिया, क्योंकि हजरत उमर में जलाल का बहुत ही ज्यादा जज्बा था, जलाल की सिफत नुमाया थी, हजरत अबू बकर में नरमी की सिफत थी, हजरत उस्मान में हया की थी, हजरत अली में शुजाअत की थी, तो सहाबा भी अंबिया अलैहिस्सलाम ही के दियों से रोशन हुए थे, उनमें भी वही कैफियतें थी। हजरत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल इसके दांत तोड़ दीजिए, किस्सा खत्म, तकरीरें नहीं कर पाएगा। इतनी उन्होंने तकरीरें की थी कि दांत तोड़ना हक बजानी था बिल्कुल। इस्लामिक अदालत अगर ये फैसला करती तो 100% परफेक्ट था, लेकिन हुजूर ने हजरत उमर से खिताब करके फरमाया कि दाहु छोड़ दो, इन्नका सतजिद ला तज़ुमहु शैआ, अनकरीब तुम उसको ऐसा पाओगे कि उसके मजम्मत की तुमको जरूरत नहीं रहेगी, उसकी बुराई करने की जरूरत नहीं रहेगी, वो ईमान कबूल कर रहा है, आने दो, करीब आने दो। उसका क्या असर हुआ आप जानते हैं, वो धीरे धीरे मुसलमान हुए, इस्लाम रासिख होता चला गया, हुजूर की वफात हुई, कबीले मुर्तद होने लगे। अब तारीख आपने पढ़ी होगी ना, कबीले जो दूर दराज के थे, जिनको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबतें नहीं मिली थी, बस वो मरूब होके मुसलमान हो गए थे, तो थोड़ा बहुत इस तौर पर मुर्तद हुए कि अल्लाह की तौहीद से, हुजूर की रिसालत से तो वो बात नहीं आ रहे थे, मगर कोई कह रहा था हम ज़कात नहीं देंगे, कोई कह रहा था हम अपनी ज़कात दे लेंगे, इस टाइप की चीजें। तो उस वक्त ये सुहैल इब्न आमरीन थे जिन्होंने अपनी खिताबत के जरिए से उन कबीलों को फिर ठीक किया, उनको फिर डगर पर लाए। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत के साथ, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के साथ, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र के साथ इंतकामी जज्बे को निकाल कर फेंक दिया और जो रिएक्शन दिया, तो ये हिल्म था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और उसका इतना अच्छा रिजल्ट आया कि फिर वो आगे चल के इस्लाम के खादिम साबित हुए। ये हिल्म है जिसकी जरूरत है कि हम अपने अंदर पैदा करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आज जो कबीला आएगा गैर खजाया वला नदामा, उसको कोई शर्मिंदगी नहीं, नाकामी नहीं, बहुत कामयाब वफ्द आने वाला है। हजरत उमर बेचैन हो गए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई वफ्द आया ही नहीं, अभी कोई ग्रुप आया ही नहीं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ कर रहे हैं। लिहाजा हजरत उमर थोड़ा सा आगे बढ़ गए रास्ते पर कि ये काफिला जरा अहम है, इसका मैं इस्तेकबाल करूं। तो देखा है काफिला आ रहा है 20 आदमियों पर मुश्तमिल, वो 20 के 20 इंटेलेक्चुअल थे, कबीले अब्दुल कैस के, तो बहुत दूर से आ रहे थे। लिहाजा हजरत उमर ने कहा मनिल कौम, आप लोग कौन हैं? तो कहा हम कबीले अब्दुल कैस के। कहा क्या इरादा किया? कहा अल्लाह के रसूल की खिदमत में हम आ रहे हैं, ईमान कबूल करना चाहते हैं। तो हजरत उमर ने कहा मैं गाइड बनता हूं, मैं चलो लेके चलता हूं। लेके आए मस्जिद नबवी के पास, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे, अंदर तशरीफ फरमा थे। कबीले वालों से कहा देखो वही है जिनसे तुम मिलना चाह रहे थे, अल्लाह के रसूल वो है जो तशरीफ फरमा है। बस घोड़ों से उतर उतर के भागे वालेहाना अंदाज में, और कोई लिपट रहा है, कोई पकड़ रहा है, कोई हाथ चूम रहा है। अब हाथ उठा कर देख लीजिए कि कोई अभी मुसलमान भी नहीं हुए, लेकिन एक मोहब्बत थी, इश्तियाक था। एक साहब वो उतरे अपनी घोड़े से और उसके घोड़े को ले गए, जहां मैदान में बांधना था वहां बांध दिया, थोड़ी सी घास और पानी उसके सामने डाला, सामान उतारा,
सामान को खोला और उसमें से सफेद साफ सुथरा जिब्बा निकाला और नजाफत की, वजू वगैरह किया, वजू यानी जो हाथ पैर धोना था अपने लिहाज से धोकर साफ सफेद कपड़ा पहना और उसके बाद से फिर धीरे धीरे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब्दुल्ला अल-शज्जा, तुम अब्दुल्ला अशज्जा हो? तो कहा जी मैं अब्दुल्ला अल-शज्जा हूं। कहा फी का खसलतैनी युहिब्बुहुमुल्लाहु, तुम्हारे अंदर दो आदतें हैं जिनको अल्लाह बहुत पसंद करता है, अल-हिल्म वल अनाअत, एक तो हिल्म है, बुर्दबारी है और काम बहुत भले अंदाज में करते हो, और वल अनाअत, और वकार है, संजीदगी है, रख रखाव है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं नस्तालिकी शख्सियत, कि ये नस्तालिकियत है तुम्हारे अंदर। तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, ये क्या मेरे अंदर मैंने पैदा कर ली या अल्लाह ताला ने इनायत की? कहा नहीं, ये तुमको अल्लाह ताला ने इनायत की है। ये दोनों अदाएं, ये दोनों सिफतें अल्लाह ताला की जानिब से तुमको मिली हुई हैं। तो फिर वो इतना खुश हुए, इतना महसूस हुए। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पूरे कबीले का सरदार बनाकर और वो सारे लोगों को कहा कि तुम्हारे सरदार इतने प्यारे हैं, लिहाजा हम आम तौर पर 3 दिन की जियाफत करते हैं, लेकिन हम इस काफिले की, इस वक्त की 10 दिन जियाफत करेंगे। 10 दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खाने पीने का इंतजाम किया और फिर उसके बाद से इतना मौका मिला उनको कि वह हजरत उबई इब्न काब के पास बैठकर उन्होंने पूरे कुरान मजीद की तस्हीह कर ली, पूरे कुरान मजीद की तालीम हासिल कर ली और अपने इलाके और खानदान के मुतालिक जो अहम मसाइल हो सकते थे वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम कर दाई बनकर फिर वो अपने खानदान की जानिब लौटे। ये हिल्म, बुर्दबारी, संजीदगी, रख रखाव, जल्दी तैश में न आना, जल्दी रिएक्शन का मुजाहरा न कर देना। और मालूम ये हुआ कि सामने वाला जो कह रहा था किसी मजबूरी की वजह से, सामने वाला जो कह रहा था वो देख आपको रहा था, कह रहा था इनको, मालूम ये हुआ कि वो बेचारी की जो बाइक टकरा गई, वो बाइक का जरा ब्रेक जो है ढीला था, वो बेचारा कंट्रोल नहीं कर सका। ये मालूम किए बगैर कि ये जो भाग रहा था बेचारा गाड़ी लेकर, इसलिए भाग रहा था कि हॉस्पिटल से फोन आया था, अगर तुम फौरन खून लेकर ना हो तो तुम्हारी माँ की जान खतरे में है। कुछ नहीं मालूम किया, आपने जरा जो धक्का दिया तो उठा के मारा, मुंह पे घूसा। ये है उम्मत मुस्लिमा का आज का अमल, जो इस हिल्म के खिलाफ है, जिसकी दावत दी गई। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल इल्म मिन अत-तअल्लुम वल हिल्म मिन अत-तहल्लुम। इल्म कैसे आता है आपको बताइए हम, कितना लंबा प्रोसीजर है इल्म का। आप साइंस की कोई एक ब्रांच में या आप इंग्लिश में या उर्दू में या अरबी में स्कॉलर बनना चाहते हो तो कम से कम आप कितने साल लगाते हैं? कम से कम ग्रेजुएशन के लिए आपके 16 साल जाते हैं। गिन लीजिए, 2 साल बचपन के, फिर 10 साल 10th तक, फिर 2 साल इंटरमीडिएट के, फिर 3 साल ग्रेजुएशन के, और वो भी मैं कम से कम मिकदार कह रहा हूं। अगर आप मेडिसिन में जाए तो 5 साल ग्रेजुएशन के। तो आपको इल्म सीखने के लिए, इल्म की एक छोटी सी शाख सीखने के लिए 16 साल लगते हैं। और ये बुर्दबारी सीखने के लिए, बुर्दबारी पैदा करने के लिए तरबियत की जरूरत नहीं है, तरबियत की जरूरत है। इसके लिए अपने अंदर काबू पैदा करें, इसके लिए हम सब्र का मलका पैदा करें और क्विक रिएक्शन को निकाल कर फेंक दे। ये मुसीबत है, हमारे लिए भी मुसीबत बन जाती है, हमारे लिए भी जानलेवा बन जाती है, सामने वाले के लिए भी मुसीबत हो जाती है। फरमाया अल इल्म मिन अत-तअल्लुम वल हिल्म मिन अत-तहल्लुम। धीरे धीरे सीखो, फरमाया बतदरीज आगे बढ़ते जाओगे, मिजाज पैदा होगा, मलका पैदा होगा। इसके ऊपर तुम काम करो, मेहनत करो, रियाजत करो, सीखोगे और अंदर तुम्हारी ये सिफत पैदा हो जाएगी और इसका फायदा तुमको भी होगा और जिससे तुम निमट रहे हो। 2 वाकयात बहुत मुख्तसर अल्फाज में बयान करते हुए मैं रुखसत होना चाहता हूं। एक इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का है कि पड़ोस में एक नौजवान आ गया और नशा भी करता था लेकिन मालूम नहीं होता था, और रात को गाना गाता था। और वो गाना उसका एक फेवरेट गाना था कि वो एक मतला होता है ना, वो मुझे याद है पूरी पोइट्री, हालांकि बड़े शायर की नज़म है वो अरबी की। अज़ाऊनी व अय्यु फतन अज़ाऊ, ये मतला है उसका, उस गजल का, उस नज़म का, जिसके माने होते हैं और इन लोगों ने मुझे जाये कर कर
कैसे नौजवान को जाहिर किया इन लोगों को पता नहीं। फिर आगे अशार वो खूब जोर जोर से पढ़ता था। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कभी किसी किस्म का कोई रिएक्शन जाहिर नहीं किया। चाहते पुलिस को खबर देते, चाहते उसको वहां से अपने शागिर्दों के जरिए से निकलवा देते, या कम से कम आखिरी दर्जे की बात खुद डांटते, क्या बेहूदगी है तुमने मेरे करीब घर लेकर ये क्या मचा रखा है। लेकिन कभी कोई रिएक्शन नहीं, खामोशी। यहां तक कि एक रात गुजर गई, उसकी आवाज नहीं। दूसरी रात, तीसरी रात, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने मालूम किया नौजवान जो गाता था, ढोल बजा बजा के शोर करता था, मेरी नींद में खलल, मेरी तहज्जुद में खलल, अब वो खामोश क्यों हो गया, क्या हो गया उसके साथ। कहा हजरत आपको नहीं मालूम, पुलिस ले गई, उसके शराब की जो लत थी वो पता चल गई। वो जमाना इस्लामी हुकूमत का था ना, लिहाजा उसके पीने का जुर्म मालूम हो गया और उसको जेल में डाल दिया गया। कहा अच्छा जेल में डाल दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं जाता हूँ। गवर्नर के पास पहुंचे। गवर्नर का आलम ये हुआ, हजरत आप मत उतरिए घोड़े से, बोले आप क्यों तशरीफ लाए मेरे पास। हैरत हो गई उसको, इतना बड़ा आलिम आ गया। कहा आपको घोड़े से उतरने की जरूरत नहीं, दौड़ता हुआ आ गया। कहा फरमाइए। कहा नहीं नहीं, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। फिर उतरे, उसके पास गए। कहा एक नौजवान है, गलत लत में पड़ गया है, मुसलमान है, बिला वजह गिरफ्तार कर लिए, हो सकता है उसको अल्लाह ताला तौफीक दे और फिर वो गुनाहों से बाज आ जाए। कहा क्या नाम है उसका। ये नाम है। कहा मैं भी निकलवा देता हूँ। लिहाजा जो कैद खाना था, जेल था, उसमें नुमाइंदा पहुंचा और उसने कहा कि अमीर तुमको आजाद कर रहे हैं, घर जाओ। तुमको आजाद कर दिया गया, जेल से रिहा कर दिया गया। उसने कहा किसने मेरी रिहाई कराई, कोई तो मेरा हमदर्द नहीं था। कहा तुम्हारे पड़ोसी जो है ना इमाम अबू हनीफा। कहा इमाम अबू हनीफा दौड़ता हुआ आया, रो कर आपके हाथ पर बैयत की, तौबा की और कहा जिंदगी में मैं अब इंशाल्लाह कोई गुनाह नहीं करूंगा। और उसके बाद जिंदगी उसकी बदल गई। उसकी जिंदगी एक फिल्म था, एक किरदार था, एक अखलाक था जिससे वो मुतासिर हुआ। और मालिक इब्ने दीनार रहमतुल्लाह अलैह का भी एक वाकया है, इसे कुछ मिलता जुलता लेकिन थोड़े से फर्क के साथ, कि वो जो है गुजर रहे थे और एक नशे में धुत नौजवान वो गंदी गंदी बातें बक रहा था, गिरा हुआ था और उसमें कीचड़ लगा हुआ था, उसके मुंह को गंदगी से उसका चेहरा आलूदा हो रहा था। तो हजरत मालिक इब्ने दीनार बड़े अहलुल्लाह में से थे, वो आगे बढ़े, उन्होंने उसके चेहरे को धोया, तौलिए से पूरा चेहरा साफ किया, उसको खुश्क अच्छी साफ जगह पर लिटा दिया, महफूज जगह पर, और उसके बाद आगे बढ़ गए। जब सुबह हुई और उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को अच्छी पोजीशन में देखा। तो उसने कहा कि कौन अल्लाह का बंदा था, इतनी हमदर्दी कर गया। लोगों ने कहा अरे वो जो अल्लाह वाले है ना, मालिक इब्ने दीनार रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने तेरे साथ ये अमल किया। बस ये कहना था कि उसकी जिंदगी में एक जबरदस्त तब्दीली आई। और फिर हजरत मालिक इब्ने दीनार हज को गए तो देखा काबतुल्लाह के खिलाफ से लपट के रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, तौबा कर रहा है अपने गुनाहों पर नादिम। ये फिल्म संजीदगी, बुर्दबारी और मामलात को सब्र के साथ, समझदारी के साथ और मामलात को दानाई के साथ, शऊर के साथ निमटने से ये नतीजे निकलते हैं। आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को खास तौर पर इसकी बड़ी जरूरत है। ये समझदारी, ये मामला फहमी और ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा ये दावा न करना, ये कैफियत हमारे अंदर न हो, बल्कि बहुत ही पोलाइट होकर कालू सलामा की सिफत लेकर हम अगर आगे बढ़े तो हम अपने माहौल को तब्दील कर सकते हैं। यह है अल्लाह ताला की जात हलीम। तो हमारी जात पर असर ये होना चाहिए कि सिफत हमारे अंदर अपने एतबार से पैदा हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।